Zoom, इसको देखो। Zoom, इसको देखो। ये न्यूज़पेपर्स तो आपको सिर्फ दिखाते हैं पिक्चर्स फ्रॉम ऑल द सेलेब पार्टीज, बट वी मेक यू फील लाइक यू एक्चुअली अटेंडेड वन ऑफ दीज हाई-फाई पार्टीज। और आपको तो पता है कि यहाँ पर पार्टी का सफर आपका पूरा नहीं होता हमारी बिग बी के बिना। जहाँ नहीं पहुंच पाते एनीबडी एल्स फ्रॉम द प्रेस, वही बिग बी यानी सिमी को मिल जाता है एक्सेस। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट एंड वेलकम बॉम्बे टाइम्स की फेवरेट पेस्ट्री कॉलमिस्ट सिमी चंडोक। सिमी, यू आर सो नॉट वेलकम टू द शो। What do you mean, मैं आपसे Deepak? बहुत नाराज हूँ। आप लास्ट वीक एक पार्टी में गई थी जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं बताया। Which one are you talking I'm about? talking about our Munna Bhai and Manyata Dutt's party. Oh, yes, Deepak, you know what? Actually, उनकी parties में मैं जाती हूँ, but I don't go in the capacity of a press person. Definitely. And they are very guarded, you know, so मुझे जरा धर्म संकट हो जाता है वहाँ पर। वैसे भी आप तो खुद ही एक सेलिब्रिटी बन गई हैं, तो बस आप हमको इनसाइड स्टोरी बताइए, क्योंकि कोई और वहां नहीं जा पाया था। Actually, I could have shared this with you, you know, but अगर आपने notice किया है तो most of the TV channels were carrying some of the footage from the party, but उन्हें वही footage मिला था कि जो उन्हें बिल्डिंग के बाहर से या एलिवेटर्स के वहां से सेलिब्रिटीज का फुटेज मिला है। गाड़ियां आ रही थी और हाँ, जा रहे थे तो बस वही। That's the reason I didn't want to share anything because I'm like बेचारे viewers confused हो जाएंगे, but now that you're insisting, I can share it with you. It was actually a really nice party, and for once, you know, Manyata, who's otherwise not so much into publicity, and especially when it comes to her personal events and everything. Right. But this time she did say that I can talk about it, and I still didn't because, like I explained to you, कि cameras अंदर allowed नहीं थे, so I thought it didn't make sense to really talk about it. Right. But now that you insist, you know, I think it's a great idea. Let's talk about it. So I think the highlight of the party, of course, was Sanju and Manyata. She was wearing a beautiful red and green Indian outfit. I think it was a sari. With bindi and everything, you know, Sanju insists that she wears Indian outfits. He loves her in Indian outfits. Yeah. So she did start the party off with an Indian outfit, and later I saw her wearing jeans and a top, and she was looking really hot. But I think besides them, the highlight of the party was Kiran Kher. Okay. And because jab, you know, the dance floor started to warm up, she was the first one who took to the dance floor with Manyata. And जो उन्होंने वहाँ पे ठुमके लगाए हैं, जो झटके मटके वहाँ पे उन्होंने किए हैं, I was really impressed. वो माँ दा लाडला तो जरूर किया होगा। वहाँ पे उनके दो लाडले थे, एक तो थे करण जौहर and second Abhishek Bachchan. Okay. And both were present at the party, and I was really impressed looking at Kiran Kher having a good time and letting her long hair down. अभी तो कुछ अंदर आपको ऐसा इंटरेस्टिंग दिखा किसी भी सेलेब के बीच में कुछ होता हुआ? अब बात बताती हूँ वो लड़कों की, वो बहुत नॉटी हो रहे थे उस दिन, एंड बेचारे सुनील शेट्टी ने सिर्फ अभिषेक को अपने न्यू हेयर कट पे कॉम्प्लीमेंट दिया बिकॉज यू नो ही कट हिज हेयर वेरी शॉर्ट। तो उन्होंने कहा यू लुकिंग वेरी नाइस, तो कहते हैं अरे यार ये तुम 80s के लड़के हो ना स्टार्स, तो आप लोगों ने फोर्सिबली ये हेयर स्टाइल हमारे पे फोर्स कर दिया है बिकॉज यू ऑल वांट टू लुक यंग एंड यू ऑल वांट टू ब्रिंग द 80s लुक बैक, यू आर फोर्सिंग अस टू डू दिस हेयर। Okay. So of course Sunil was a sport and he's the one who was telling me this story in fact. He's always been a prankster according to me. Absolutely. तो और इस पार्टी के बारे में मैं क्या बताऊं, वहाँ पे संजय दत्त और मान्यता होस्ट कैसे हैं वो बताइए। Oh, they are such wonderful hosts, and you know, Sanju, I don't even think was touching a drink because it's like he just wanted to be the perfect host, you know, and he's so wonderful. He looked gracious in a beautiful pinstripe jacket, and you know, वहाँ पे politicians भी थे, film stars भी थे, तो I could see हम समझते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा and बाबा आजमी and Amar Singh are like political rivals, but if you see them at a party, dude, कुछ पता नहीं चलता कहाँ rivalry है, they look like best friends. Okay. तो वो अपने बार के पास बिल्कुल अपना छोटा सा दरबार बना के बैठे हुए थे. It was nice to see that, you know, and I saw Amar Singh in fact talking to Vidya in fluent Bengali. तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप बंगाली कैसे जानते हैं, एंड वो मुझे बंगाली में ही समझाने लगे कि वो बंगाली कैसे जानते हैं. तो आपको बंगाली समझ में आई कि नहीं? थोड़ा थोड़ा एकटो एकटो I think he said भालो I think he said that he went to school in Calcutta. He spent a few years, and that's how he picked up Bengali. Right. But मुझे अभी तक ये नहीं पता चला how Vidya Balan understands Bengali. So well, the connection is Pradeep Sarkar. Oh. Well, she has been in one of the movies with him, so of course maybe the bond connection can be from there. Yes. So that's the smart conclusion you've come to. How I did it. हाँ. आज तो तुमने मुझे फंसा लिया बिल्कुल. बस यार सिमी, तो ये बताइए कि संजू ने कहीं पर गांधीगिरी की नहीं? बिल्कुल की एक्चुअली. यू नो व्हाट दीपक, आई थिंक आपको किसी इनसाइडर ने बिल्कुल फीड की हुई आज पूरी स्टोरी. नहीं वो मुन्ना भाई हैं तो गांधीगिरी तो कहीं ना कहीं तो करेंगे. हाँ जरूर की, इनफैक्ट बिकॉज प्रेस बाहर काफी शोर मचा रही थी अपेरेंटली. तो
you know, in fact, one of our reporters who was standing outside was saying कि वहाँ पे एक neighbor थी, she's some kind of a lawyer or something, and she was very upset, and she was, you know, asking the press to go away, and the press was refusing to go away and budge, and बहुत शोर पड़ रहा था, and of course it was late, so she was probably getting disturbed. तो Sanju नीचे आया, and she was like, okay, Sanju, and you know, he just went and totally charmed her, and he was so sweet with her. वो बिल्कुल फ्लोर हो गई बिल्कुल, and then apparently she said, you know what, Sanju, you didn't invite me for the party, but happy anniversary. तो that was so उनका गांधीगिरी का चाम वहाँ काम कर ही गया. तो मजा तो डेफिनेटली बहुत आया होगा. हाँ, यहाँ पे ने दे देते हैं 8 out of 10. ओह लवली. तो सिर्फ स्टाइल की बात करें तो स्टाइल मीटर पर क्या देंगे आप? स्टार मीटर पर भी इन्हें तो काफी अच्छा स्कोर मिलेगा, बट उससे पहले मैं आपको स्टाइल के बारे में बता दूं. लाइक आई सेड, Manyata showed off two looks, you know, that evening. One was the Indian look, and then one was, of course, casual jeans look, you know. And Sanjay Dutt looks so handsome. मैं बता ही चुकी हूँ. I was raving about his jacket just 2 minutes ago with you. Did he sport that? नहीं, बिल्कुल नहीं. He's lost so much weight, and he was looking really, really nice. Like all the girls, they were just gushing about how nice he was looking. And उनके जो friends भी थे वहाँ पर काफी लोग थे, you know, they were all sporting great jackets and कोई cigars के साथ, and you know, Sunil Shetty had this little goatee, you know, he was looking really nice. Like I told you, Ritish थे वहाँ पे new look के साथ, Abhishek थे वहाँ पे new look के साथ. And the girls were looking really nice, you know, some were wearing hot dresses like Amisha Patel, you know, she was wearing a beautiful off-shoulder orange dress. Vidya Balan looked very simple but very beautiful. उन्होंने सलवार कमीज पहना था. And style meter is going up. हाँ, बिल्कुल जाना ही चाहिए. एंड अगर आप माना शेट्टी जो सुनील शेट्टी की वाइफ है उन्हें देखें तो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल रेड आउटफिट पहना था, कोई सोच ही नहीं सकता है कि वो इतने 2 बड़े बच्चों की माँ है. शी इज इन सच गुड शेप. आई वाज रियली इम्प्रेस्ड. तो स्टाइल पे तो इन्हें दे देते हैं 7 out of 10. देना ही चाहिए एटलीस्ट उतना. और इसमें अटेंडेंस भी क्या देंगे आप? अटेंडेंस में तो आप जान ही चुके होंगे. आई जस्ट बीन ड्रॉपिंग one name after the other. Also, yes, there was also Fardeen Khan and his wife, and then I saw Zayed Khan. And अब मैं कितने नाम लूँ यार? It'll be like a repetition, you know. Already I've been dropping names like there's no tomorrow. मैं ही दे देता हूँ आज मीटर 9 out of 10 अटेंडेंस. If you insist. बिल्कुल. सिर्फ मैं 1 point काट रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था. Okay, done. Phew, Simi, that was something. तो और कोई असला है आपके पास, कुछ RDX टाइप एकदम हाईली एक्सप्लोसिव? एक्चुअली दीपक, अब आपने एक ऐसी एक्सक्लूसिव हवा यहाँ पे चला दी है ना कि मुझे एक और बात कुछ खास याद आ रही है. अरे बिल्कुल बताइए. यू नो, in fact, this was my first meeting with Frida Pinto, and वो एकदम उसी टाइम आई थी वापस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अटेंड कर. राइट, मैंने देखा था आपका इंटरव्यू उनके साथ. Yeah, so you know, Slumdog Millionaire had won the first few awards, and I interviewed her, and like I said कि वो काफी चार्मिंग थी, एंड वो इतनी प्रिम एंड प्रॉपर हैं, इतनी शार्प है उनकी विट, एंड जैसे वो बात करती हैं, शी इज, यू नो, गिव्स यू ब्यूटीफुल वेरी एप्ट आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क हर. और जब मैंने उनके साथ वो इंटरव्यू की मैं काफी इम्प्रेस थी, लेकिन मैंने एक बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन उनसे पूछ लिया था, एंड मैंने रियलाइज किया है कि कई बार हम एक इनोसेंट क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं और उसका आंसर जो हमें सेलिब्रिटीज देते हैं उसका रियल मतलब सिर्फ वो ही जानते हैं. कि मतलब क्या छुपा होता है, एंड हाउ यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस. अब ये बात मुझे तब खुद भी नहीं पता चली. रीड बिटवीन द लाइंस का क्या कहने का मतलब था आपका? दीपक, यू नो व्हाट, डोंट बी सो इम्पेशेंट. आप पहले आई सजेस्ट देखो कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है फ्रीडा को और फ्रीडा पिंटो क्या रही हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट्स द हिडन मतलब बिहाइंड द स्टोरी. फॉर श्योर सिमी, लेट्स चेक दिस आउट. आपने पहले कभी गाउन पहना था? Absolutely, I've worn it before, शादी में, और you know, now and then I've just worn it, but अपनी शादी तो नहीं, राइट? नहीं, फ्रेंड्स की शादी में. अपनी शादी तो नहीं, राइट? नहीं, फ्रेंड्स की शादी में. ठीक है. सिमी, मैं कुछ ये समझा नहीं. दीपक, हम भी नहीं समझ पाए थे, एंड इनफैक्ट वी एयर्ड दिस इंटरव्यू ऑन Zoom, एंड मैंने बड़ी इनोसेंटली उनसे क्वेश्चन पूछा था कि यू नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज वोन अ गाउन फॉर द गोल्डन ग्लोब्स, एंड आई वाज आस्किंग हर लाइक व्हाट डिड शी वेयर फॉर द गोल्डन ग्लोब्स एंड हु डिजाइन्ड इट फॉर हर. तो अपने डिजाइनर का नाम बता रही थी मुझे एंड ऑल दैट. तो मैंने यूं ही एक स्वाभाविक क्वेश्चन से पूछ लिया कि आपने पहले कभी गाउन पहना है कि दिस वॉज योर फर्स्ट टाइम? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पहले कभी पहना है ये गाउन, कई बार पहने हैं गाउन्स, बिकॉज तो मैंने कहा कब? तो उन्होंने कहा शादियों में. तो मैंने कहा कहीं अपनी शादी में तो नहीं?
तो अगर आप देखें तो वहां पे वो कह रही हैं नहीं फ्रेंड्स की शादी पर यू नो व्हाट, बट अब आपको ये तो पता है कि टैबलॉइड्स ने पूरा एक्सपोज कर दिया है कि शी डिड गेट मैरिड टू हर फियांसे, यू नो, इन 2007 उन्होंने गोवा में एक सीक्रेट शादी की थी। एंड पिक्चर्स भी हैं हमारे पास। वो गाउन एक डिजाइनर जो बॉम्बे के लोकनाला एरिया में उनका स्टोर है, उन्होंने डिजाइन किया था। तो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रीन गाउन, और मैंने तो काफी इनोसेंटली उनसे पूछा कि ये अपनी शादी में तो नहीं पहना था, मैं तो मजाक कर रही थी। तो ओहो, 2 and 2 put together, असलियत सामने आ गई। बिल्कुल, 2 and 2 put together has made 10 year। तो सिमी मान गए, आज तो पार्टी शादी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग थी और एक्सप्लोसिव भी थी। बिल्कुल, एक्चुअली इट वाज लाइक you forced it out of me, but I'm glad I shared it with you and the viewers. Hey, good to have you on the show again, Simi. Thank you, Deepak. It was my pleasure. You're welcome.